The second thing related to the limitation of the planning is planning may not work in a dynamic environment. Business environment consists of the social, economic, legal, and other factors that keep on changing. The organization has to adapt itself to such changes, but sometimes planning cannot assess future trend exactly and thus fails in a dynamic environment. So, in the changeable world, in the dynamic environment, we could not sure that is in planning may work in the dynamic environment. The third one is that planning reduce creativity. It is an activity which is done by the top management and the rest of the member just implement these plan. They are neither allowed to deviate from plan nor are permitted to act on their own. Due to this, much of the initiative or creativity inherent in manager or other member gets lost or reduced. And there is nothing new or innovative in the organization. यानी प्लानिंग से हम क्रिएटिविटी को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसा कह सकते हो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम न्यू थिंग, न्यू नॉलेज एंड न्यू स्किल पे फोकस करते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. You know very well, it is usually involves a lot of time, effort, and cost of the manager, collection of data, boardroom meetings, investigations, and discussion with expert involve a lots of expenditure of the organization. Sometimes the cost incurred may not justify the benefit derived from the plan. प्लान में बहुत सारे पैसे लगते हैं और कभी कभी ये सारे प्लानिंग के पे जो भी स्पेंड हम करते हैं कभी कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं और कभी कभी हमारे लिए नेगेटिव रिजल्ट भी प्रोवाइड करते हैं. यानी पैसा भी लगा बट वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं होता है. प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. Sometimes plan to be drawn up to take so much of time and there is no much time left for their implementation. This leads to failure of planning. प्लानिंग की फेलियर इस बात पे भी डिपेंड करती है कि प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसके कारण टाइम पे प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है जिससे प्लान फेल हो जाता है. एंड प्लान डज नॉट गारंटी सक्सेस. Success of the planning rests on their implementation. Lack of proper implementation may lead to failure of planning. Even if a plan has worked earlier, it may not work again. अगर कोई प्लान पहले सक्सेस हुआ है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो फिर से सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में जो चेंजेस हैं वो हमेशा होते रह रहे हैं. These are the internal limitation of the planning. Now we are talking about the external limitation of the planning. इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग हम प्लान में जो लिमिटेशन उसको दूर कर सकते हैं. बट इंटरनल लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसपे हमारा पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता या कंट्रोल होता ही नहीं है. जैसे अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, political outlook towards industries and their intervention also affect the company's plan. Environmental changes in social, economic, legal and technological environment may affect forecasting and planning. And competitor strategies, change in strategy of the competitor may lead to failure of the planning. So you can see that चाहे हम अनफोर्स इवेंट्स की बात कर लें, पॉलिटिकल आउटलुक की बात कर लें, इन्वायरमेंटल चेंज की बात कर लें, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की बात कर लें, ऑल दीज फैक्टर में अफेक्ट द प्लान एज अ होल. तो अगर हम कोई प्लान बनाते हैं, कभी कभी ऐसे अनफोर्सिन इवेंट्स जैसे अगर आपने देखा कोविड-19 की जो सिचुएशंस चल रही है इंडिया में, उसके कई सारे लोगों की जो प्लानिंग है वो ख़राब हुई होगी. अगर हमने कोई प्लान बनाया अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी आ गई जिसका बिजनेस को लेकर एक रिग्रेसिव नज़रिया है. इन्वायरमेंटल चेंजेस, लगातार इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी ये लोग अपनी चेंज कर रहे हैं, तो उससे हमारी प्लानिंग वर्क नहीं कर पाता. सो दीज आर द एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. Good morning, everyone. Once again, we are coming to introduce a new topic of Class 12 Business Studies.
And in the last few videos we already discussed a lots of the theoretical concept related to the chapter number 3, that is in planning, and chapter number 4, that is in planning, and before that we are discussing about the chapter number 3, that is in business environment and the management. Basically, you know very well what is in business environment, and you can see that what are the factors and features of the business environment, what are the importance of the business environment, as well as we discuss about the dimension of the business environment, in which we discussed the forces and factor which influence the business environment as a whole. And in the last video we already discussed the basic term related to the planning, that is in what is a planning, what is a feature of the planning, what are the planning process, the types of the plan, this is single use plan and the standing plan. So in this video we discuss about the limitation of the planning. Thereafter we discuss the planning process, the difference between the standard planning and single use plan, as well as discuss the explanation of the different types of the plan, जिसे हम लोग शॉर्ट में 3 प्रॉस भी कहते हैं. So without creating a delay, let's we discuss the first topic of today's video, that is the limitation of planning. Limitation of planning. Planning has both internal and external limitation. Internal limitation of planning. Following are the internal limitation of the planning is planning leads to rigidity. Whereas planning may not work in dynamic environment. Planning reduces creativity. Planning involves huge cost. Planning is a time consuming process, and planning does not give guarantee सक्सेस. ये सब प्लानिंग की लिमिटेशन, या कह सकते हो कि ये सब प्लानिंग को डिफाइन करती है कि प्लान करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कई तरह की लिमिटेशन को भी फेस आउट करना पड़ता है. जैसे अ स्पेसिफिक प्लान मेड इन ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड एंड द वे ऑफ डूइंग वर्क. सिंस अ मैनेजर मे नॉट बी एबल टू चेंज दिस प्लान, इट्स लीड्स टू रिजिडिटी. तो प्लान एक रिजिड फेस को डिस्क्राइब करता है, यानी कि जब हम एक एप्रोप्रिएट प्लान अडॉप्ट करते हैं तो उस प्लान के कारण कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको लेकर अगर हम प्लान करेंगे तो प्लान स्टेबल नहीं रहेगा, प्लान कभी भी क्लियर नहीं रहेगा. सो प्लान की क्लैरिटी के लिए उसका रिजिड होना ज़्यादा ज़रूरी है. year. Okay, and single use plan are developed for activity which are not likely to be repeated in future. और हमें पता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए हमें स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, स्पेसिफिक सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है. जैसे फॉर एग्जांपल यू नो द इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रही है, हर महीने बढ़ रही है, हर 6 महीने में बढ़ रही है, 3 महीने में बढ़ रही है. तो जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना बजट प्रिपेयर करते हैं. सो प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान, वेयर इज अ बजट इज अ टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लान. क्योंकि हम हर 3 महीने के लिए बजट बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर 3 महीने पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है. फिर 3 महीने बाद फिर इन्फ्लेशन के बेसिस पे फिर बजट डिसाइड कर रहे हैं. तो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि बार बार हमारे बिजनेस में होंगे, तो उसके लिए हम लोग स्टैंडिंग प्लान का यूज़ करते हैं. और जो चीज़ें हमारे बिजनेस में स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती हैं, उसके बाद वो प्लान बेकार हो जाता है, तो उसके लिए फिर से प्लान हम लोग बनाते हैं, विच इज़ नोन एज सिंगल यूज प्लान. ओके, द थर्ड वन इज पीरियड. दीज प्लान आर फॉर्मुलेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड. स्टैंडिंग प्लान जो बनाया जाता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए बनाया जाता है. जैसे हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, रूल्स बना लिया, तो क्या रूल्स आज बनाए जाते हैं कल बदल दिए जाते हैं? रूल्स को हम लॉन्ग टर्म वैल्यू में फॉलो करते हैं. वेयर एज
सिंगल यूज़ प्लान आर जनरली फॉर्मुलेटेड फॉर द शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए सिंगल यूज़ प्लान बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। सो आपको समझ में आ गया स्टैंडिंग प्लान का जो स्टेबल नेचर होता है और उसे हम बार बार यूज़ करते हैं। वेयर एज सिंगल यूज़ प्लान वो बदलते रहते हैं, क्योंकि एक 3 महीने के लिए प्लान बनाया, बजट बनाया, पता है वो अगले 3 महीने के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा, नेक्स्ट 3 मंथ फिर हमें प्लान बनाना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा। सो अगर स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए तो स्टैंडिंग प्लान आर रिलेटिवली स्टेबल, but single use plan have less stability as they are discarded when the specific situation of project is over. Number 5 is on the basis of scope. Standing plan have a wide scope as they are involve more than one department of business function. अगर हम स्कोप की बात करें तो स्टैंडिंग प्लान का जो स्कोप होता है वो काफ़ी डीप होता है, क्योंकि इसका जो यूज़ होता है वो जनरल पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर हमने डिसाइड किया, वो प्रोसीजर हर जगह एप्लीकेबल हो, इट इज़ एप्लीकेबल इन लार्ज एरिया, बट सिंगल यूज प्लान आर जनरली हैव अ नैरो स्कोप, दे फॉर्मुलेटेड टू फिट अ स्पेसिफिक सिचुएशन। तो जनरल सिचुएशन का स्कोप वाइडर होता है एंड स्पेसिफिक सिचुएशन का स्कोप जो होता है नैरो होता है। दैट्स वाई स्टैंडिंग प्लान्स हैव अ वाइडर स्कोप एंड सिंगल यूज प्लान हैव अ नैरो स्कोप। एंड द लास्ट, procedure for processing an order of recruitment of employees, it is based on standing plan, and cash budget to show expected inflow and outflow of cash for a specific period in advance, it is a single use plan। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि एडमिशन का प्रोसीजर, स्टाफिंग का प्रोसीजर, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग प्लान। वेयर इज अ सिंगल यूज प्लान में हम लोग बात करते हैं, बजट बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, फिर प्रोग्राम्स को हम लोग जब हम कोई दूसरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए एक अलग से प्लानिंग फिर से करते हैं, क्योंकि उस समय की सर्कमस्टेंस सिचुएशन अलग होती है। सो इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान ऑन द बेस ऑफ मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, पीरियड, स्टेबिलिटी, स्कोप एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नाउ आज के इस वीडियो के आखिरी टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ द प्लान, मैथड, बजट, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, और इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको प्रेजेंट करूंगा, बिकॉज ऑफ उतने से ही काम नहीं चलेगा। सो इनका हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ मेथड, बजट, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ प्रेजेंट होगा। सो इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल नो द ब्रीफ डिस्कशन on these terms. The first one is objective. Objective means it can be said to be desired future position that the manager would like to reach. What is the meaning of objective? Objective means वो सिचुएशन, वो पोजीशन जो हम फ्यूचर में चाहते हैं कि हमें वो चीज़ें अवेल हमें मिले, विच इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी, अ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं जिसमें हम सारे स्टेप डिसाइड करते हैं कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा। और स्ट्रैटेजी में डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, जो स्ट्रैटेजी डिफरेंट थ्रेड्स के बेसिस पे बनाई जाती है कि अगर ये थ्रेड्स आएगा तो हम यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। Number 3 is policy. Policy are general statement that guide thinking or channelize energize toward a particular direction. Policy जो होता है एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो हमें अपने काम को करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आपने एक लाइन सुना होगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है। तो पॉलिसी हमें क्या बता रही है, इस बात पे वो हमें दिशा दे रही है, डायरेक्शन दे रही है कि हमें अपने बिजनेस में हॉनेस्ट रहना है। एज वेल एज समटाइम बिजनेस फॉलो नो क्रेडिट पॉलिसी। उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, नो क्रेडिट पॉलिसी, यानी वो उधार बेचेगा ही नहीं। सो ये जनरल स्टेटमेंट है जो हमें अपने काम को करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोसीजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर? इट डिस्क्राइब द एग्जैक्ट मैनर इन विच अ सर्टेन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म। किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक मैनर प्रोवाइड किया जाता है कि स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2 इज दिस, स्टेप 3 इज दिस, लाइक एडमिशन प्रोसीजर, स्टाफिंग प्रोसीजर,
It provides a prescribed way or manner in which a task has to be performed considering the objective. जैसे प्रोसीजर और मेथड में आप कंफ्यूज होंगे. प्रोसीजर का मतलब स्टेप्स कि हमें एडमिशन लेना है. अब एडमिशन लेने के स्टेप्स हैं. स्टेप 1 कि आपको फॉर्म भरना है. तो फॉर्म भरने में भी कई मेथड होंगे जो हमें ये प्रेस्क्राइब करेगा कि उस स्टेप को हमें किस मेथड से करना है. ऑनलाइन फॉर्म भरना है कि ऑफलाइन फॉर्म भरना है. तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज अ मेथड, इज एग्जाम्पल ऑफ द मेथड वेयर इज अ फॉर्म फिलिंग for the admission in the school. It is a step for the procedure. So procedure जो है स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करता है कि उस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है. वैसे मेथड ये बताता है कि पर्टिकुलर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हमें किस मैनर को यूज़ करना है. द नेक्स्ट वन इज रूल्स. रूल्स एंड पॉलिसी में भी जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं. रूल्स जो पॉलिसी जो होता है वो जनरल स्टेटमेंट होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. देयर इज अ रूल जो हमें एक लिमिटेशन ड्रॉ करता है, एक लक्ष्मण रेखा फॉलो करता है. जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली, मॉनेटरी पॉलिसी निकाली, तो मॉनेटरी पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं, वो जनरल स्टेटमेंट है. बट गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया, उसमें डिफरेंस आता है. उस डिफरेंस में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे. अभी हम लोग छोटे से स्टेटमेंट समझते हैं. रूल्स, देयर आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन. पॉलिसी में बताता है कि हमें काम को करना है, किस डायरेक्शन में करना है, बस. उसमें ये नहीं बताता है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये नहीं बताता है. बट आपको एक पॉलिसी डिसाइड कर दी जाती है, आप उस बेसिस पे आपको काम करिए नहीं करिए, इट इज़ डिपेंड ऑन यू. बट रूल्स स्ट्रिक्टली बताता है कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन. एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो बताता है हमें आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है. फॉर एग्जांपल, नो स्मोकिंग पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रीमाइसेस के अंदर स्मोकिंग नहीं करना है. सो इट इज़ अ रूल्स, और जो उसको वायलेट करता है वो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता. ओके, सो इट इज़ अ rule. The next one is program. You know what is program? These are concrete action plan indicating how, when and by whom work is to be done. किसी काम को करने के लिए प्रोग्राम हमें ये गाइड करता है कि उस काम को कैसे, कब और कौन करेगा. एक एक्शन प्लान डिसाइड किया जाता है. And budget, it is a projection designed to define the anticipated cost and result in numerical terms of single project. किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, उस कॉस्ट को डिज़ाइन करना कि वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा. सो नॉर्मली वी कैन से बजट मीन्स व्हाट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट टू परफॉर्म ऑफ एनी प्रोजेक्ट. किसी काम को करने के लिए पहले से डिसाइड करना कि इस काम को करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी और उस कॉस्ट के अंदर ही हमें काम करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, एज वेल एज हमें जो अनअवॉइडेबल्स एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कम होंगे. सो आई होप कि आपको इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट. एंड these all the topics are closely interrelated and interdependent with among each other. सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट है, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा. Now we are moving to the next topic of today's video, that is an process of planning. If we are talking about the process of planning, so process of planning फॉलो द फॉलोइंग सर्कल. यानी अगर हम किसी प्लान को डिटेल में डिस्कस करें, सो द स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स. द सेकेंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. थर्ड विल बी आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. फोर्थ इज evaluating alternative courses. Fifth is selecting an alternative. Seventh is implementing the plan, and last will be follow-up. So in the planning process, we follow the 7 steps, which is started from the setting objective and end with the follow-up action. So one by one, let's we discuss each and every step of the planning process. Okay.
So the first step of the process of planning is setting objective. Every organization operates to achieve certain objectives. Objectives specify what the organization wants to achieve. Therefore, the first step in planning is to define and describe clearly the objective of the organization and each and every department or unit within the organization. Once decided, should be communicated to all the units and employees. And in the first step of the process of the planning, we decide the objective. ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, और आफ्टर द डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव हम हर डिपार्टमेंट या यूनिट को उनका ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करके बताते हैं, ताकि अगर वो एज अ यूनिट, एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने गोल को अचीव करेंगे तो एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर लेगा. सेकेंड इज अ डेवलपिंग प्रीमाइसेस. Planning is concerned with future, which is uncertain, and every planner is using conjecture about what might happen in future. You know very well, change is the law of nature. अगर हम आज कोई प्लान बनाते हैं फ्यूचर में किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो. सो प्लान को हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द assumption, basic assumption regarding any particular topic. So managers is required to make certain assumption about future. उसे कुछ assumption लेने पड़ते हैं. These assumption are known as premises. Premises are the base upon which plans are drawn. यानी कुछ premises ऐसे होते हैं जिनको हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम अपने प्लान में ये ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, या ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है. फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो हम अपने प्लान को इस तरह से चेंज करेंगे. यानी प्लान को चेंजेबल बनाने के लिए या प्लान को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम कुछ एजम्पशंस को लेकर मूव ऑन करते हैं. द थर्ड स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस विल बी अ आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. Once the objective and planning premises are established, it becomes necessary to discover the various course of action which may lead to use achieve the established objective. These alternative may be routine or innovative. यानी कि ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग प्रीमाइसेस डिसाइड करने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन या डिफरेंट अल्टरनेटिव डिस्कस करें, डेवलप करें कि हम एक ऑब्जेक्टिव को किस किस ऑप्शन से अचीव कर सकते हैं. ठीक है, यानी यू नो वेरी वेल व्हाट इज डिसीजन. when we have a lots of option and we can choose only one option. So कई सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना, इट इज़ एन डिसीजन. उसी तरह से प्लानिंग इज ऑल्सो विल बी अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें हम कई सारे ऑप्शन पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद उन सारे ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, विच इज़ नोन एज द फोर्थ स्टेप, दैट इज द इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज. द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव. यानी हर अल्टरनेटिव का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है. इट इज़ नेसेसरी टू इवेलुएट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच अल्टरनेटिव इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव to be achieved. This might involve a number of calculation to measure the cost and benefit analysis related to an alternative. यानी हर अल्टरनेटिव का कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं हम लोग कि हर अल्टरनेटिव से हमें क्या फ़ायदा और नुकसान हुआ होगा, उस अल्टरनेटिव को हम अडॉप्ट करेंगे तो हमें क्या कॉस्ट बियर करना पड़ सकता है, और अगर नहीं करते हैं तो क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, और उनसे क्या बेनिफिट मिलेगा. यानी उनके प्रॉज एंड कॉन्स यानी हेड्स एंड टेल्स सब चीज़ों को इवेलुएट करना. और आफ्टर ड्राइंग अ लॉट्स ऑफ द ऑप्शन वी सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव. सो दिस इज़ अ रियल point of decision making. The best plan has to be adopted and implemented. An ideal plan would be the one which is most profitable, most feasible and has the least negative consequences. यानी कई सारे ऑप्शन डेवलप करने के बाद हम उसमें से किसी एक अल्टरनेटिव को, किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं. ये ऑप्शंस हम आफ्टर द इवेल्युएटिंग इन ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव को डिस्कस करने के बाद करते हैं. यानी सारे अल्टरनेटिव को एनालाइज करने के बाद हम किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं, विच इज़ नोन एज सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, एंड देयर आफ्टर वी इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. सो दिस स्टेप इज कंसर्न विद द पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन एंड डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड. यानी पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, उस ऑब्जेक्टिव
को अचीव करने के लिए हमने डिफरेंट हमें ऑप्शन डेवलप करने, इसलिए हमने कुछ प्रेमाइसेस डेवलप किए। उस एजम्पशन के बेसिस पे जब हमने कई सारे ऑप्शन डेवलप किए, उनके प्रॉस एंड क्रॉस को इवेलुएट किया, उसमें से किसी एक को क्या किया, किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, और उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया। सो दिस स्टेप इज कंसर्न विद द पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, यानी हमने प्लान बनाया, प्लान को हम एक्शन मोड पे डाल रहे हैं। एंड डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या ज़रूरत है। द मैनेजर्स स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू एम्प्लॉइज एंड इनिशिएट देम टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान। ओके, यानी प्लान को एक्शन में कंप्लीट करने का कौन सा स्टेप होता है, दैट इज एन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। And last step of the planning process is follow-up action. Follow-up action is planning is a continuous process, so the manager keep on the following up the plan to see that activities are performed as per schedule or not. ये प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो प्लान डिसाइड किया है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि हमने प्लान जैसा सोचा था, जिस एम को लेकर हमने प्लानिंग की थी, जिस एम को लेकर उस बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ किया था, क्या वो अल्टरनेटिव, क्या वो टर्म, वो ऑप्शन हमारे बेस्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। सो मॉनिटरिंग द प्लान इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी इन शॉर्ट वी कैन से दैट फॉलो अप एक्शन मीन्स द मॉनिटरिंग द प्लान इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी प्लान को मॉनिटर करना कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान हम जिस एम को लेकर चल रहे थे क्या उस एम को अचीव कर पाए, यानी ये प्लान हमारे एम को अचीव करने में कहाँ तक सक्सेसफुल रहा है। अगर उसमें कोई डिफिशिएंट है तो उसको हम लेकर भी फॉलो अप करते हैं।